To all our viewers, thanks a lot for staying with us here at CNN News 18. I'm Ridhima Bhatnagar and we continue our non-stop coverage of what has happened as far as Himachal Pradesh is concerned. As our colleague Ranveer has been explaining to us over the last 1 hour that the Chief Minister is also closely monitoring the situation, but the only priority as of now is to ensure that maximum lives can be saved. If there are people still trapped under that rubble, those people can be pulled out at the earliest. But the unfortunate news is that there are confirmed deaths that have been reported by authorities on the ground who are continuing with their rescue operation. रणवीर, हम आपके दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे अभी स्थिति कैसी है। जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि चीफ मिनिस्टर भी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय ये है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इस प्रक्रिया के लिए कितनी टीम, कितने लोग जमीन पर काम कर रहे हैं? रणवीर, आप सुन पा रहे हैं? Okay, we'll try and re-establish that connection with our colleague Ranveer, who continues to get us those visuals that you're seeing coming in from Shimla. As we were pointing out that there is rain mayhem, monsoon mayhem that continues to unfold in states like Himachal Pradesh, which unfortunately has led to many people losing their lives and many are still fear trapped. So as I pointed out, even though authorities are working round the clock, multiple teams working, but the biggest priority as of now is try and rescue those people who are stuck under the rubble. हमें 7 बजे फोन आया घर, तो हमारे बेटे जो है वो 7-6 बजे के करीब अंदर आ गए थे। वो सारे अंदर आ गए थे, बच्चे हमारे गांव के कम से कम 6 बच्चे हैं यहाँ जो अंदर आए हुए हैं। अब कुदरत है, कुदरत ने क्या करना है, ये तो जो होना था हो चुका है, जो कुछ नहीं कहा जा सकता। So as we pointed out, we continue to track the big story. Multiple reactions also coming in where people now saying that their only hope is that people and family members and loved ones who currently trapped under this rubble can be saved at the earliest. As we pointed out, there have been confirmed deaths that have been reported by the authorities. Many bodies have been pulled out from that rubble as well. The biggest concern is the weather conditions. If the weather conditions deteriorate any further, that will have a direct impact as far as the rescue and relief operations are concerned. So as our colleague Ranveer was pointing out a short while ago, family members, loved ones now hoping for a miracle to ensure that their family members can be rescued, those who are possibly feared trapped under this rubble. The Chief Minister has also gone on to say that yes, there have been some confirmed deaths, but they are working round the clock to try and ensure that those who are still trapped under the rubble can be rescued at the earliest. Many houses have been impacted as well, 15 to 20 houses that have been impacted in these areas as well. But as I pointed out, the biggest concern, there are two big concerns. One is if the weather conditions do not support the relief and rescue operations, that is going to be a big hindrance for the teams that are working round the clock. And the other big concern is that we still don't have an exact number of the number of people who could be trapped under the rubble. So many authorities saying it could be 20, it could be 30. We still don't know the exact number, and that's the priority as far as the authorities on the ground are concerned. The word that's coming in from the Chief Minister is that 5 people have already lost their lives, and the fear is that about 20 to 30 people could be trapped under this rubble. Our colleagues from the network continue to get us those reports and also voices to help us understand what's really happening on the ground. Let's also now bring in our colleague Rajinder, who's also now joining us on the broadcast. Rajinder, पहले मैं आपसे स्थिति समझना चाहती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि काफ़ी अथॉरिटीज़, काफ़ी टीम्स काम कर रही हैं, पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय ये होगी जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। अथॉरिटीज़ का क्या मानना है? कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी माना जा रहा है मलबे के अंदर दबे हुए हैं? बिल्कुल, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल यहाँ पर है और 2 बड़े इंसिडेंट राजधानी शिमला में हुए हैं, कैपिटल सिटी में हुए हैं। पहला जहाँ शिव मंदिर के नीचे मलबे में काफ़ी लोग दबे हुए हैं और अभी तक 9 डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाला जा चुका है। कितने और लोग हैं ये बता पाना मुश्किल है। और दूसरा इंसिडेंट यहाँ फागली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप लैंडस्लाइड
देख सकते हैं ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है और 3 से 4 कच्चे मकान यहाँ पर थे जो लैंडस्लाइड के कारण दब गए हैं और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हैं। इन पेड़ों के नीचे ये लोग दबे हुए हैं और कुछ बॉडीज को अभी तक रेस्क्यू भी कर लिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कुछ लोगों के जिंदा होने की यहाँ पर आशंका व्यक्त की जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है। तो ऐसे में आईटीबीपी के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, स्टेट पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब कटर मशीन लाई गई है, कटर मशीन की सहायता से पेड़ों को काटा जा रहा है और उसके नीचे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला हुआ है। लेकिन स्थिति यहाँ लोकल काउंसलर हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, क्या स्थिति है, कितनी डेड बॉडीज अभी तक निकाल ली जा चुकी है? अभी 2 तो डेड बॉडी निकाली जा चुकी है और अंदेशा है 1 आधी और हो सकती है। लोग कितने मकान यहाँ पर थे? मकान जो 4 मकान तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बाकी जो रोस पड़ोस के मकान हैं उनको भी खतरा है। उनको भी खतरा बना हुआ है। तो यहाँ हुआ कब, जैसे ये सवेरे 7:15 7:30 के आसपास हुआ था। उसके बाद जब हम लोग 8:30 के आसपास इनको हेल्प करने के लिए आए थे, उस टाइम दोबारा से स्लाइडिंग हुई और उसमें ये लोग दब गए। अब बड़ी बात इन्होंने कही, डबल लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ। पहले लैंडस्लाइड हुआ, उसके नीचे लोग दबे और उनको रेस्क्यू करने के लिए जब लोग यहाँ पहुंचे तो फिर दोबारा से लैंडस्लाइड हुआ और उसके नीचे जो रेस्क्यू करने लोग आए थे वो भी दब गए। अब ये इनका कहना है। तो सिचुएशन पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में क्रिटिकल बनी हुई है इस वक्त। अब अलग अलग जगह से लोगों के दबे होने की, लैंडस्लाइड की और क्लाउड बर्स्ट की अब खबरें आ रही हैं और अभी तक जो वेदर फोरकास्ट है उसके अनुसार आगे आने वाले 2 से 3 दिन और स्टेट में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वेदर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल पूरे स्टेट में है। तो अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है और अब जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा, और अभी तक प्रायोरिटी लोगों की है, जो दबे हुए लोग हैं उनको बचाने की। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आईटीबीपी के जवान भी मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है जो लोग हुए हैं उनको निकाला जा सके। 4 लोग जिनको निकाला है और जिंदा निकाला गया है उनको दिया गया है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के लिए, उनको सबको रेफर कर दिया गया है यहाँ से। और 3 अभी तक शव यहाँ से बरामद किए जा चुके हैं और कुछ एक लोगों के जो रेस्क्यू करने के लिए आए थे और उसके मलबे के नीचे दब गए हैं उनको निकालने की कोशिश है और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो लोग अभी जिंदा हो। तो अलग अलग मशीनरी का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि वेदर साथ नहीं दे रहा है, वेदर सिचुएशन क्रिटिकल है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुल मिलाकर तो हम कह सकते हैं पूरे शहर में और देश में प्रकार की स्थिति है। सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हर आधा या तो लैंडस्लाइड है या फिर पेड़ सड़कों में गिरे हैं जिसके कारण मशीनरी को मूव करने में We seem to be losing that line with our colleague Rajendra, but as he was pointing out correctly, this seems to be a double tragedy, a double landslide that is unfolded in this area. There was one landslide, then there were a set of people who were sent to rescue people and they got themselves trapped in second landslide as well. So authorities on the ground are confirming that as many as 9 deaths have already taken place. Many still fear trapped under this rubble, and that's going to be the priority, to try and pull out these bodies at the earliest, or if these people are arrived, to shift them to a nearby hospital. Multiple teams working round the clock. That's the clarity and confirmation that is coming from the Chief Minister as well. I believe our colleague Rajendra is now back with us. Rajendra, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहती हूँ, जैसे आप सही बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि एक डबल ट्रेजेडी, एक डबल लैंडस्लाइड हुआ है। पहली जो लोग फंसे थे, एक टीम भेजी गई उनको रेस्क्यू करने के लिए और फिर वो खुद ही इस मलबे के नीचे आ गए। आप मुझे सिर्फ एक चीज समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि कितने घर इस जगह के आसपास थे? क्या उन लोगों की कंफर्म डेथ्स हो गई है या उन लोगों को आसपास के किसी इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है? भगवान को क्या मंजूर है? 4 कच्चे मकान यहाँ पर थे जो लैंडस्लाइड की चपेट में आए और नीचे दब गए। इसके अलावा 4 से 5 और मकान यहाँ पर हैं, वो पक्के मकान हैं लेकिन लैंडस्लाइड हुआ है, खतरा उनको बना हुआ है। घरों के अंदर जो लोग थे 4 लोग वो मलबे के नीचे दब गए हैं अभी क्योंकि मलबा निकाला जा रहा है। पेड़, बड़े बड़े पेड़ लैंडस्लाइड के कारण आए हैं जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। पहले पेड़ों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मलबा हटाया जा सकेगा। पेड़ क्योंकि ऊपर से गिरे हैं। ठीक मेरे पीछे
पीछे आप देख सकते हैं। अब तो इसीलिए दिक्कत आ रही है और यही कारण हुआ जब रेस्क्यू करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो सेकंड लैंडस्लाइड आया और उसके नीचे लोग दब गए। अब उसके कारण फिर ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूअस है।